अवार्ड्स का इंक्लूड करने से जो मेरा मानना है, एक स्पिरिट बदल गई फेस्टिवल की, और पूरे देश में से लोगों ने अप्लाई किया। देखिए, अवार्ड्स का मतलब बहुत सारे लोगों ने नहीं भी अप्लाई किया क्योंकि अवार्ड्स हैं, लेकिन बहुत सारे ग्रुप्स ने इनको अप्लाई किया। जैसे असम से जो ग्रुप आया और तमिल कन्नड़ के प्लेज आए, तो अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ा हासिल था। और मैंने यही सोचा था लगभग कि मैं चाहता हूँ पूरे देश से लोग आएँ और परफॉर्म करें। हम दिल्ली बम्बई के प्लेस बहुत सारे कर चुके थे, तो मुझे लग रहा था कि हमें और इस देश को देखना है लोगों के माध्यम से। तो आसाम के लोगों से मिला, बहुत सुंदर लोग थे। साउथ के लोगों से मिला, वो अद्भुत लोग थे। और साउथ में जो आर्ट है, हम उससे बहुत पीछे हैं, हम मतलब उत्तर भारत में। तो मुझे लगा कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, और मैंने लगभग कुछ ऐसा ही सोचा था अवार्ड्स करने से पहले। खुशकिस्मती है हम लोगों की कि जो नाटक आए इस फेस्टिवल में शिरकत के लिए, वो बेहतरीन नाटक थे। अलग अलग भाषाओं के थे, ये हम सब ने देखा। अलग अलग सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों की कहानियाँ थीं। उनको कहने वाले लोग भी फ़र्क बैकग्राउंड से आने वाले लोग थे, और बहुत बेहतरीन इस लिहाज से कि अपने मुंह से तारीफ करते हुए बहुत अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन इस फेस्टिवल में जिस तरह का एंथुसियाज्म ऑडियंस ने दिखाया, और जिस तरह उनकी प्रेजेंस ऑडिटोरियम में रही, और जिस तरह वेरी ग्रेट फॉर दैट, हमारी कैपेसिटी से ज़्यादा लोगों को तो हम ऑलरेडी अकोमोडेट कर सके थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग थे जो नाटक देखना चाहते थे, थिएटर तक आए और नहीं देख सके। तो मुझे लगता है कि लोगों ने उसको बहुत अच्छी तरह रिसीव किया है। ये जो इस बार का प्रोसेस है, या जो नया ऐड हुआ है कि अलग अलग जगहों से, देश के दूरस्थ इलाकों से आने वाले लोग। To make a theatre festival and award successful, it definitely firstly takes a brilliant mind, and that is Dr. Vijeshwar Singh. He conceived the entire idea. His idea took a beautiful turn when we got beautiful numerous amount of entries, and then definitely the judges who were brilliant in picking up the best out of the rest, and definitely last but not the least, the beautiful and brilliant participation of the groups who had never come to Bareilly. So for them to come to Bareilly and embrace the audience, embrace the system, for them even everything was new. So I think it takes the entire team effort. It requires their positivity, their love, their warmth, their affection for theatre that makes it successful. Before coming here, I had heard a lot of praise about this festival, and I'm very proud, very, very happy to be a part of the Windermere Theatre Festivals and Awards in Bareilly. It is not just my first time at this festival, but also my first visit to this wondrous city of Bareilly. And a lot of people told me that they, bring sweets from here and bring other things that are very famous in Bareilly. But I think what the city is really famous for is the theatre festival itself. We have been wanting to bring this play to Bareilly for a very long time. Actually, in fact, we've been wanting to bring all our plays to Bareilly because we've heard from many artists how wonderful this festival is. But we also have a space in Adishakti where we also conduct festivals. And one thing, as a host to a lot of artists back at home, what matters is that there is a period of a conception that takes place, and there is a period of rehearsal that takes place, and then the artist is in the complete mercy of the host as to how the play should be presented. And for that there has to be a pod for the artist to trust the venue and how well they are taken care. And I don't mean by you have to be put up in a 5-star hotel, you should be given the best food. That's not what I mean. I mean the empathy that a venue shows towards an artist, and that would mean that the artist is taken care, they are protected, so that
you can give the best performance possible for an audience who's very new to your work. And I exactly felt that the venue cares for the artists, and they will do anything in order for the artist to feel protected and to give you an opportunity to give the best performance. और जब इस बार मुझे पता चला कि बरेली में एक इस तरह का फेस्टिवल हो रहा है जो राष्ट्रीय स्तर पर है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और जब मेरा नाटक सेलेक्ट हुआ तो कंपटीशन मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं थी, पर मैं सच बताऊं, मैं 2013 में मध्य प्रदेश में पढ़ रही थी, तब मैंने यहाँ के बारे में सुना था, क्योंकि यहाँ के 2 बच्चे मेरे साथ क्लास में पढ़ रहे थे, गरिमा और आदर्श। तो इस जगह के बारे में, डॉक्टर साहब के बारे में, इस ग्रुप के बारे में मैंने बहुत सुना था। तो तब से मेरी इच्छा थी कि मैं बरेली आऊँ और नाटक करूँ। तो यहाँ आना और इस नाटक को लाना ही मेरे लिए बहुत बड़ी और खुशी की बात थी। यहाँ के लोगों को नाटक ना समझ में आना मुझे लगता है बड़ी बात नहीं है, पर वो जो असर हम पैदा करना चाहते हैं वो असर उन तक होना चाहिए। From the point you walk into the auditorium, you see the history of the theatre festival, you see the history of plays that have been staged here, you see the photographs of actors, you see autographs of famous theatre artists, and that brings a lot of hope and a lot of strength and a lot of confidence in theatre artists who are working today. The kind of respect and admiration that Windermere Theatre Festival has for theatre is something very unusual, and I am so happy to be a part of this festival and to be welcomed so warmly as an artist by the entire festival team here. I love challenges. The challenge with which 1 or 2 plays, especially like Avalanche, came, where where there were sets for which the material procurement was very difficult. Then there was sound, which was very difficult as the resources were limited. And how we started working much in advance, to collect the material from all over the places in India. Then how we collected the sound system, how we made it up to look like a real, just a real place where people could live in, especially in the winters where there's a lot of snow, as the name of Avalanche says it all. सेट का कुछ ऐसा सामान था कि वो कैसे बनेगा। उनका एक मेन कारपेंटर जो था वो बॉम्बे से आए हमारे बनाने के लिए, गार्डियंस के लिए, और बाकी हमारे एक रईस कारपेंटर हैं, उनकी टीम है। उन्होंने दिन और रात काम करके 48 घंटे, मतलब 42 घंटे लगातार काम किया। मतलब मैं कह सकता हूँ कि बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो 42 घंटे लगातार काम करके हमने एक सेट बनाया, और वो सेट बनाया और डिसमेंटल भी फिर उतनी ही जल्दी करना था हमें। तो उसकी भी प्लानिंग हमने पहले से करके रखी कि हमें इतनी लेबर चाहिए, इतने मजदूर चाहिए होंगे, इतने कारपेंटर चाहिए होंगे। और जैसे ही प्ले ख़त्म हुआ, उसको डिसमेंटल करने के लिए हमारी टीम आई, दोबारा उसको हटाया, क्योंकि दूसरे नाटक का सेट लगना था। तो इस बार वो सेट का तो कमाल टास्क था। और सबसे अच्छी बात यह है कि सारी टीम में ही सेट की तरफ से भी खुश होकर गई हैं, और तरफ से तो गई हैं, सेट की तरफ से भी खुश होकर गई हैं। तो हमारा अचीवमेंट है ये। To see something come up and light up on stage as the director has perceived it to be, and we working hard to show it to the audience exactly what is in the thought of the director, is I think beautiful. To see the smile on the audience faces, to see the smile on the director's faces, that this is what he wanted and this is what he gave to the show and gave it to the audience. But to sum it up, I think the team did a brilliant job, whether it was doing the heavy sets for a play like Avalanche, or doing beautiful sound system for other plays like Mehroon and Agarbatti, which were musical. So on the whole, it was a beautiful experience. As far as the process is concerned, sir, हमने करीब 2 महीना रिहर्सल्स किए थे। तब हमने सुनील शानबाग साहब ने उनकी रेजिडेंसी में कम से कम 1 हफ्ता बिताया था, क्योंकि हम ये वॉइस क्रैक करना चाहते थे, एक फैमिली क्रैक करना चाहते थे, वो फियर क्रैक करना चाहते थे उसकी, क्योंकि हम शुरू में माइकिंग इस्तेमाल नहीं करते थे, बिकॉज वी वर डूइंग दिस शो ओनली फॉर 50 पीपल, एक 50 लोगों के हमने तब, क्योंकि वो स्पेस ऐसी थी। फिर हमने जब शो बाहर किया, मेटा में किया, फिर हमने G5A में करीब 4 शोज़ किए। अभी हम 5 तारीख को पृथ्वी थिएटर जा रहे हैं वो शो करने। तो जब हमने मेटा में शो किया, तब हमने रियलाइज़ किया कि हम जितनी भी कोशिश कर लें, हमें इसको करने के लिए फॉर अ लार्जर ऑडियंस माइकिंग करनी पड़ेगी, नहीं तो हमारा ये नहीं होगा। और हमें यहाँ पर भी मतलब आई नो इट्स अ ब्यूटीफुल थिएटर, पर अगर कल माइक्स नहीं होते तो लोगों को बहुत मुश्किल होती। तो
हमने वॉइसिंग का एक प्रोसेस किया है, कॉस्ट्यूमिंग में श्वेता एंड भूमिका का एक ऑर्गेनाइजेशन है ग्रीन रूम ड्रम्स। तो बहुत वी वर वेरी फॉर्चुनेट दैट हम जो करना चाह रहे थे उसमें बहुत अच्छे लोग हमारे साथ जुड़ पाए। So maybe your text from Shakespeare have to kind of stay above, but doesn't the tragedy of Desdemona kind of makes the other two texts sub, or the tragedy of the other two women, whether it's Shakuntala or Kekai, or for that matter the other queens, because when you're talking of Ramayana, for that matter, there's not just Kekai. The tragedy moves to every other queen also. So by bringing up Desdemona, aren't you kind of making the other two far low, whereas the audiences with whom you kind of perform would be looking forward to, okay, how do I find alliance in my Kekai or in Shakuntala? I think that the way that I see it is that we take the story of Kaikai, probably because she's the most unanimously put as, slotted as cunning, a certain kind. And we present her point of view in the Harikatha form in a kind of a tongue-in-cheek manner. And in that, I think we are taking a kind of liberty with the form and the story. Even in Dushyanta Shakuntala, we are taking liberty with the form and the story. And if you look at that design, we are taking liberty with Shakespeare's text in form and story. And that is what is the attempt to do in the arc of the play. Whether the tragedy hits harder with Desdemona or not, that's really No, comparatively, I'm kind of trying to weigh. Yes, here Desdemona, the weight of what we feel for Desdemona is because it is tragic. And I think what we consciously wanted to play is a certain power that these characters, Shakuntala and Kaikeyi, get also in the way the storytelling happens, in the way the form enables. So we wanted to play with that actually, that they're actually voicing out. And they're voicing out quite confidently in their own way. And that happens even in Harikatha, that happens in Yakshagana. So we also wanted to open that possibility that the form itself also gives. So that's why I think it got that lighter and maybe I would say a brighter tone. विद्युत आप जो है बात पे जैसे कहते हैं लोकल इश्यूज से शुरू कर रहे हैं जी और उसको एक नेशनल पर्सपेक्टिव में ले जा रहे हैं और वो जहाँ बात करते हैं आप कि वो एक झूठ पर सारा देश चल रहा है, इस तरह की टिप्पणी करते हुए आपको किसी तरह का किसी ने कहा नहीं कि यार क्या कर रहे हो? किया था सर गोरखपुर में हुआ था ये। गोरखपुर में अभी जो PRN किया था। हाँ नहीं तो ऑडियंस की तरफ से रिएक्शन था? जी ऑडियंस की तरफ से एक दादा ने बोला था उठ के, तो उसको बुरा लगा, ये सरकार के खिलाफ है। मैंने ये नहीं बोला सरकार के खिलाफ है, ये नहीं बोला, लेकिन मैं ये बोला कि जो ग्रास लेवल्स के जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो पैसे खा देते हैं। मतलब सरकार तो पैसे बहुत सारे देते हैं, आसाम में भी ये होते हैं, बहुत सारे पैसे आते हैं, मतलब ये काम करो बनाओ ये, लेकिन जो वो पैसे मतलब नीचे तक जो लोग होते हैं पॉलिटिशियंस, जो ग्रास लेवल के पॉलिटिशियंस है वो लोग पैसा खा लेते हैं, तो नहीं होते। दादा आपकी बात समझ गए? पता नहीं, लेकिन उनको रुका गया। बहुत सारे लोगों ने बोला दादा आप बात करेंगे, ऐसे उनको बोला तो वो साइलेंट हो गया, लेकिन वो तो बोलता ही रहता था, मुझे डर भी लग रहा था। वो था पहले तो मुझे मतलब मालूम नहीं था कि ये मुझे कास्ट करेंगे। मुझे शेयर सब बात मुझे शेयर करती है, तो जब उन्होंने पहले लिखा तो मेरे साथ शेयर किया, तो उसके बाद वो सब सीन मतलब लिख गया। उसके बाद मुझे बोला
कि ये कैरेक्टर तुम ही करोगे। कि मैंने बोला वो क्या होता है ना, मतलब नाटक में हस्बैंड वाइफ करना डिफ़िकल्ट है और रियल में हस्बैंड वाइफ तो बहुत डिफ़िकल्ट है। मतलब क्या हुआ ना, मैंने उसको बोला कि मैं नहीं करूँगी। और सच बात ये है कि मैंने कहीं से भी नहीं सीखी है थिएटर में, देख कर सीखी हूँ और इनसे अब सीख रही हूँ। इससे पहले कितने नाटक किए? मैंने तो बहुत मतलब किया, लेकिन मतलब ऐसे आकर चली गई। 2 डायलॉग्स या 3 डायलॉग्स मैंने मतलब अच्छे से तो 3 साल 4 साल से मतलब प्रैक्टिस किया। तो मेरा ये है, जब मैं उनकी डायरेक्शन में एक्टिंग करती हूँ तो मुझे इनसे बहुत डर लगती है कि ना मुझे सबके सामने मुझे मतलब गुस्सा करे, मेरा कुछ बुरा हुआ तो मुझे कह देगा। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, तुम कर पाओगे, करना ही पड़ेगा। ऐसे किया तो अच्छा भी लगा कि उनका जो मेरे ऊपर विश्वास है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर भी डर भी लगा, लेकिन मतलब बहुत मन में विश्वास लेकर फिर कैरेक्टर किया। There's a place called Kumartola. So if you go to Kumartola during, especially before the puja time, every time an artisan puts together a clay, deity or any other thing, he does exactly what you did. He whispers, he or she, they whisper something to it to give life to it. Okay. That's number one. Yeah. I've seen it. The other, is there any element from Punjab folk? Although I don't agree with this that this is a folk play or that it's come closer to folk. For me, it is not. But is there any element of folk from Punjab which has been taken in, especially constructing the clay part of it and the tension in it? Is there? No. Okay. In Punjabi folk, right from our side of Punjab through the Pakistani Punjab, cross Afghanistan, cross Iran, go up to Turkey. There's a belief among women which is called Mitti da Babya. Oh wow! So Mitti da Babya, these women who are waiting either for their sons who have gone on trade, men who have died fighting wars or have not come back home for any reason whatsoever, they create their imagery in clay. And again they whisper. Wow. They whisper and probably seek the power from the divine. I want to see my son, my husband, my uncle, my aunt, whoever, men, basically. So, did you guys study that? No, we didn't know this. And thank you for... Mitti da Babya is amazing. You must listen to that. Ranjit Singh ji ne gaya hua hai. It's like a Sufi folklore कह सकते हैं. It was actually, I was so convinced that you had probably seen it or at least gone to Kumartola in... Kumartola I have been because Did you see this thing? No, not the whispering. It happens. I think मिट्टी जो चीज़ है, that is मतलब किसी भी औरत को मिट्टी से जोड़ना, it is a sign of it's a sign of love, fertility. एंड है ना, जो जैसे जो मिच्छ कटिकम है इस माटी की गाड़ी एंड इट इज़ अबाउट लव। एंड मुझे लगता है और एक फीमेल फिगर जब एक मिट्टी के साथ जुड़ती है, आई थिंक everything comes from that soil. We are the other connected with agriculture or our life cycles or for that matter even our festivals. You take it anywhere. आपका नाम क्या है? राजेंद्र अरोड़ा। क्या मैं आपको ये आपने एक बहुत खूबसूरत चीज़ आज हमें बताई है, क्या मैं आपको आगे के लिए कोट कर सकता हूँ? मिट्टी का बात, बिकॉज इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग यू टोल्ड अस एंड पता नहीं कैसे हमारा इससे इत्तेफाक नहीं रहा इस चीज़ से। Even more universal than we knew. बहुत बढ़िया चीज़ इन्होंने। लेकिन आप लोग पहुंचे तो एक ही लेक पे ना? दूसरा रास्ता लिया। रास्ता वही है। क्या बात? आप ना चाहते हुए भी पहुंचे। पावर ऑफ थिएटर है।
त्रासदी शायद हर घर की कहानी, थोड़ा पीछे जा सकते हैं, अभी ज़माना बदल गया है, उतना नहीं है, लेकिन त्रासदी हर स्त्री की कहानी है। देखते हुए मुझे मेरी मम्मी याद आ रही थी, बहुत कुछ उनके जैसा। अभी भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। थैंक यू। तो इस प्ले देख के मुझे लगा कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं आके चुप रहूँगा, बस माँ के आगे कुछ भी, कोई आगे से कोई बहस नहीं, कोई कुछ नहीं करूँगा। मतलब इतना अंदर से मैं मतलब वो हो गया हूँ। मतलब कहते हैं ना कि हमारे पास वर्ड्स ही नहीं है इसके लिए बोलने के लिए। इतना सुंदर और इतना लग रहा था कि हम भी वहीं पहुँच गए जहाँ अवलांच होने वाला है। Definitely, it was breathtaking. I mean, first of all, the kind of set that they put up captivated us, and then एक बार play शुरू हो गया तो it was just like watching a movie, whatever was happening on the stage. Awesome, magnificent. And it's so difficult to talk about real things while including humor in it, and they did such a great job at it. We were with them the entire time. I will be with them even after I go back home, which is a huge thing. It was so funny and so true. It's amazing. I am kind of shaking by how amazing it was. I was having the time of my life. I think they were having the time of their life, telling their stories, so we just kind of related with them. Yes. But yeah, I think just a lot to think about and take back instead of just laughing it off. It was a very serious play in itself. पब्लिक सांस थामे हुए खड़ी थी और क्या अद्भुत गाया है लोगों ने और क्या अद्भुत डिजाइनिंग है, झकास। बहुत अच्छा लगा मतलब, और मतलब क्या बताएं। हम लोग आसाम से ही बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद हमने देखा है। बहुत अच्छा लगा। तो आप आसाम से, आप बरेली में रहते हैं? हाँ, बरेली में रहते हैं। मतलब कि पता लगा कि ऐसा है बोल के फिर हम आए, उसके बाद फिर जो देखा मतलब बहुत ज़्यादा बहुत अच्छा लगा। हेलो, हाय, हम भी असमीज हैं। मोनिशा बोरा, प्रकाश में भी बहुत अच्छा लगा। जॉय आया हम। वो भी है पूरा पार्टी। यस, एक्चुअली बहुत हार्ट टचिंग था। एक्चुअली जो रियलिटी है ना, आप लोगों से ज़्यादा हमें समझ में आया। तो हम सबसे ज़्यादा एंजॉय किया यहाँ पे, है ना। ये एकदम बहुत मस्त नाटक था। सबटाइटल्स पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, हमने कैरेक्टर्स पे थोड़ा। सबटाइटल में थोड़ा सा कम लिखते हैं, लेकिन हम एवरी वर्ड हमें समझ में आ रहा था, तो हमें ज़्यादा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। थैंक यू। Very, very beautiful, very exquisite. Such a nuanced play, such good writing. It's an original play and it's so nice to watch a beautifully written, beautifully directed and really wonderfully acted and put together play. I'm so happy I was here to watch it. बहुत सारे कैरेक्टर्स में मैं खुद को देख रही थी, हालांकि उसके लिए विधवा होने की ज़रूरत नहीं है। मैं कुंवारी होके भी उसमें छोटी छोटी ख्वाहिश ढूंढ रही थी। आई लाइक इट। पहली बार हमारा अवार्ड फंक्शन था, तो इससे जो सीखने को मिला है वो ये है कि इंसान जब परफॉर्मेंस करता है, एक एक्टर या एक्ट्रेस परफॉर्मेंस करती है या डायरेक्टर जो प्ले डायरेक्ट करते हुए आते हैं, तो एक उम्मीद लेके आते हैं वो कि चलो यार कुछ तो हम अच्छा करेंगे तो जाहिर है हमें कुछ ना कुछ अचीवमेंट मिलेगा। तो वो जो प्ले के बाद का उन लोगों का डिस्कशन था और प्ले के बाद जो पूरे जितने 6-7 दिन वो रहे आपस में, मैं सुनता रहता था कि यार क्या होगा, कि क्या हो रहा है, कि इसका सेट कैसा गया, कि इसका एक्टर कैसे कर रहे थे काम, कि इसमें हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा, ये सारा जो एक आसपास से सुनने को मिलता रहता था, ये बहुत इंटरेस्टिंग था। और उसके बाद जब ग्रैंड फिनाले हुआ तो जो सब लोग ऐसे दिल पे हाथ रख के एक टकटकी बांध के ना ऐसे करके ऐसे देख रहे थे क्या हो रहा है। बेस्ट सेट, बेस्ट एक्टर, बेस्ट डिज़ाइन, बेस्ट लाइट, मतलब बेस्ट प्ले, ये जो मोमेंट थे वो कमाल थे। मतलब एक लग रहा था कि पूरी जान लगा के किसी ने तैयार किया है और बस आखिरी लम्हों का इंतज़ार देख रहा है कि हमारा क्या होगा। वो मोमेंट था मेरे लिए, एपिक मोमेंट थे वो सारे। जब ट्रॉफी का डिज़ाइन हो रहा था, ट्रॉफी बनाने की प्रक्रिया चल रही थी और डॉक्टर ब्रिजेश्वर सिंह ने ढेर सारा इनपुट, ढेर सारी मेहनत, ढेर सारा इमेजिनेशन उसमें शामिल किया। उसका मीडियम क्या होगा, उसका बेस कैसे बनेगा, नाम कैसे लिखे जाएंगे, कैसे, उन सारी मशक्क़त के बाद उस दिन
स्टेज पर ट्रॉफीज को रखे हुए देखना और उन ट्रॉफीज को आर्टिस्ट के हाथ में देखना, ये देखना कि उसको पाके उसको अपने हाथ में लेके जिस तरह का गौरव वो महसूस कर रहे थे, मुझे लगता है कि इस पूरे फेस्टिवल का सबसे बड़ा हासिल उन आर्टिस्ट को उस ट्रॉफी के साथ खुश देखना था। एंड दिस इज वी विल चेरिश हिज फॉर ए लॉन्गर टाइम और एटलीस्ट अंटिल नेक्स्ट एडिशन। तो मेरी जो जूरी थी और प्रभात जी के साथ इतने दिनों रहने को मिला, प्रवीण शेखर सर, अमितेश सर, उनके साथ रहने को मिला, इतने मतलब सबसे सुंदर बात ये थी कि ये लोग एक सप्ताह साथ रहे, तब दोपहर, शाम, रात, तो इतना कुछ सीखने को मिला। हेमा मैम आई थी दिल्ली से, उनके साथ रहने को मिला, जिनका मतलब हर समय जो है आपको लगता है कि कितना प्यार करते हैं आपसे। इसके अलावा शिवकेश जी, अजित राय और सबसे सुंदर बात डॉक्टर खालिद जावेद जो थे, मतलब इतने ज़हीन आदमी हैं और वो साथ रहे। और इस फेस्टिवल की जो सबसे और सुंदर बात थी, मुझे लगता है कि जो मेरे लिए फेवरेट मोमेंट था, वो राजेंद्र अरोड़ा जी से जैसे लोगों से मिलना। मतलब वो अद्भुत इंसान थे, इतने पॉजिटिव कि मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। तो इतनी सुंदर जूरी थी कि प्रवीण ने काम किया था बहुत सुंदर यहाँ पर पहले भी, और वो साथ रहा, तो मुझे एक तरीके का आश्वस्त था कि सब टेक्निकल्स में कुछ गड़बड़ नहीं होगा। हमारे लोग बहुत सुंदर काम कर रहे थे, दानिश, अजय, अनुष्का। तो सबसे सुंदर बात तो ये थी कि वी वर लाइक अ फैमिली, कि एक फैमिली जो एक्सटेंडेड फैमिली है उसके साथ आपको एक हफ्ता रहना पड़ा। नई तरह के लोग, एकदम नए लोगों से पर्सनली मैं तो पहली बार मिल रहा था, इस तरह के डाइवर्स कल्चर के लोगों से नाटक के मौके पर। तो मुझे लगता है कि दैट वाज द कंक्लूडिंग प्ले जो कंपटीशन में शामिल नहीं था, आदिशक्ति थिएटर का उर्मिला। उसको उस नाटक के ख़त्म हो जाने के बाद हम सब, कम से कम मैं ये सोच रहा था कि अब हमको दरअसल आज और कुछ नहीं करना चाहिए, हमको घर चले जाना चाहिए। और उस नाटक में रहकर हमने जो अनुभूत किया है, द वे वी हैव फेल्ट, हम उस सबको कहीं तरतीब देके अच्छे से संभाल के रख सकें अपने भीतर, अपने मन में, अपने दिमाग में। इट वॉज सच अ नाइस प्ले। अब नाइस कोई उसके लिए अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऑडिटोरियम में जिन लोगों को देखा, जिन लोगों से मैंने बात की, मोस्ट ऑफ देम दे हैड द सिमिलर एक्सपीरियंस लाइक मी। वो कई ऐसे लोग थे जो लगातार आ रहे थे, और पर्सनली मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ कि वो कंपटीशन में शामिल प्ले नहीं था, इसलिए कि अगर वो कंपटीशन में होता तो बहुत टफ कंपटीशन देता दूसरे प्लेस को। From my heart, firstly, I would like to thank my entire team who has worked tirelessly, endlessly, and I think I give full marks and lots of gold medals to Danish to, complete this entire thing within a restricted time with less resources, working day and night endlessly. Then obviously Anushka is my chota packet bada bomb, who was walking this path of of listening to so many scolds of the groups and then also doing her work brilliantly. She was superb. She handled the entire festival flawlessly. जो हमारी टीम थी, मुझे लग रहा है कि जो पिछले 2-3 महीने से काम कर रही थी, स्पेशली शिवानी, मुशाहिद भाई और अनुष्का, मतलब उन्होंने इतनी मेहनत की है, इन लोगों ने इतनी मेहनत की है कि मतलब मुझे कभी लगा ही नहीं कि मेरे ऊपर कोई भार है। लोगों से बात करना, कम्युनिकेट करना, उनकी सुविधाओं का ध्यान रखना। डॉक्टर इंद्रेश, उससे ज़्यादा कोई मेहनत नहीं कर सकता मुझे लगा। उन्होंने इतनी मेहनत की है कि लोगों के ट्रांसपोर्ट से लेकर के डॉक्टर जॉन ने जूरी की मेहनत, जूरी के लिए पूरा जिम्मा उठा लिया था और उसको बहुत सुंदर तरीके से निभाया उन्होंने। तो अनूप हमारे यहाँ के
जिन्होंने हमारे सुपरवाइज़र जिन्होंने इतना अच्छे से सारी चीज़ें अरेंज की थी, लोगों को कोई असुविधा नहीं हुई। इसके अलावा मतलब हमारे जो बच्चे हैं थिएटर वाले, मुनीश है, आशु है, आशी है, इन लोगों ने बहुत सुंदर काम किया। हमारे थिएटर वाले बच्चे हैं जो रेगुलर थिएटर देखने आए, बरेली के थिएटर के रंगकर्मी हैं जिन्होंने नाटक इस देखा और इसको सफल बनाया। Yes, last but not the least, Prabhat Bhaiya, who was the director of the festival, his guidance meant a lot. And yes, as I always say, the captain of the ship, Dr. Vijeshwar Singh, I think I should thank him first for making us a part of his beautiful fest, for allowing us, to not only be a part, but take those decisions also in which probably we needed him, but we probably couldn't get hold of him because he's a doctor. So I personally feel that I owe it big time to the team for this successful festival and awards. And if given a chance, I would just like to work with this team again and again. और सबसे बड़ी चीज़ तो बरेली की ऑडियंस है, बरेली के दर्शक हैं जिन्होंने कभी भी मुझे ये खलने नहीं दिया कि ऑडिटोरियम आज खाली रह गया। मतलब मैं बरेली के दर्शकों को, बरेली के लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इन एफर्ट्स को पहचाना कि हम क्या कर रहे हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा हासिल यही है। From root to shoot was possible just because of a team which is committed and working without feeling pain or hardship involved, making things possible. Whatever has been decided, they strive to make it possible, and they did it. This is what a team means. And personally, I should say that the team Windermere is the best.